Hello, welcome to another episode of Hustle Tank. Today we have Niranjan with us, who is the Senior Vice President at Edelweiss Mutual Funds. So, sir, usually we take a longer introduction, but your career has been huge enough. Like 19 years is not a short span. Hmm. So, मैं चाहूंगी कि आप ही dive deep करो. How did you start? What were the different things that you experimented with, and how did you end up here? Oh, great question to start. Yes. I have to go back to almost 2 decades to think about the answer. But yeah, so I'm a cost Hmm. accountant. Also did my marketing from Pune University, and I then landed up with a job in sales. Started my career into sales, of course, BFSI into Hmm. financial services, and then slowly moved towards investment. 2006-7 is when I, started into broking, then went into mutual funds, and then ended up selling mutual funds, now marketing mutual fund, creating products and enjoying it. So it's been almost 18, 19 years journey Yes. into financial services, starting from sales to now, managing products, brands, digital, a lot of things. Okay, so firstly, I want to understand ki what interested you about sales, Hmm. because from my perspective, sales is the most difficult job. Hmm. But I also feel ki if anyone is getting into any business, any startup, sales is the basic quality जो सबको आनी चाहिए. Hmm. Because once you know कि आप कैसे sell कर सकते हो, फिर वो कोई भी business हो कुछ भी हो, Right. you very well know how to do it. But वो जो होता है ना एक interesting factor, क्योंकि sales I feel at times becomes very annoying because Hmm. people don't listen to you. And obviously, there are a lot of nuances. So, what interested you about it? So the honest answer is sales was the easiest way to get into corporate life, and that is how I started. Because I was very introvert, very shy. Actually, sales helped me पहले 2-3 साल कि Hmm. उस शेल से बाहर आए. Hmm. बिकॉज इन सेल्स यू मीट पीपल, लोगों से बात करते हो, वो ज़रूरी है, अदरवाइज सेल्स नहीं होगा. Hmm. सो इनिशियल 8-9-10 years of my career which I spent in sales actually helped me understand consumers. और Hmm. कोई भी बिजनेस चलाने के लिए या कोई भी फंक्शन को चलाने के लिए अगर आपको कंज्यूमर पता है, उसके उसे क्या चाहिए, उसकी नीड्स पता है, उसका बिहेवियर कैसा है, साइकोलॉजी कैसा है, अगर वो आपको पता चली तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हो. Hmm. सो सेल्स एक्चुअली आपको वो चीज़ों में हेल्प करता है, विच एक्चुअली हेल्प मी अलॉट. Hmm. ओके, जैसे आपने मेंशन किया कि यू आर एन इंट्रोवर्ट, तो आई एम श्योर कि वो तो चैलेंजेस अलग होते हैं, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस आल्सो माइट बी एन इंट्रोवर्ट, और वो सोचते होंगे कि सेल्स इज समथिंग वेयर यू आर डेली कम्युनिकेटिंग विद लाइक हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पीपल. हम्म. सो हाउ डिड यू नेविगेट दैट? हम्म. Like, was it difficult? Yeah, it just या happened इट with the वाज flow. डिफिकल्ट बिकॉज सेल्स भी कई प्रकार के होते हैं. एक डायरेक्ट सेल्स होता है जहाँ पे आपको डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाकर बात करना है, डोर टू डोर सेल्स भी Yes, होता है. yes. सो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, बट इंट्रोवर्ट होने के कारण एक और स्ट्रेंथ भी होती है, एंड मैंने उस पर ज़्यादा काम किया कि जब आप कस्टमर तक पहुँच जाए और जब आप कस्टमर के सामने बात करते हैं तो आप फेक नहीं लगते हो. Hmm. कस्टमर्स एक्चुअली रियलाइज कि हाँ, ये बंदा थोड़ा शाय है, बट उस शाइनेस में एक ऑनेस्टी होती है, एंड लॉट ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स रिलेट करते हैं एंड दे एक्चुअली बिलीव यू. Oh, व्हेन okay. यू आर बोल्ड इनफ, नथिंग Hmm. अगेंस्ट बीइंग Hmm. बोल्ड, Hmm. बट आप दो चीज़ों के बजाय चार चीज़ें बोलते हैं, एंड समटाइम्स वो अपीयर फेक होता है, इट Hmm. अपीयर्स कि ये Hmm. थोड़ा Hmm. फेकनेस है. Hmm. बट जब आप इंट्रोवर्ट होते हो ना तो ऑनेस्टी क्लियर दिखती है, विच एक्चुअली बिकम्स योर स्ट्रेंथ, विच हेल्प्ड मी अलॉट. That's really a great insight. इस perspective से I don't think लोग सोचते हैं. Okay, तो coming to the major question firstly, if I am a 18-year-old, 19-year-old, just started to earn, do you think you need to start then and there, या let your salary grow gradually and then you like move into investing and savings? सी इन्वेस्टिंग, सेविंग्स एक प्रोसेस है, इट इज़ मोर अबाउट हैबिट्स. Hmm. और जब आप कोई भी चीज़ या अर्निंग्स स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड समथिंग, सम मनी ऑन योर ओन ऑल्सो. लेकिन सम मनी, पूरा Hmm. नहीं. Hmm. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, इवन यंग पीपल, जो स्टार्ट करते हैं एंड दे आर वेरी प्रूडेंट विद देयर स्पेंडिंग. तो अगर आप अर्न 100 रुपये कर रहे हो और उसमें से आप
₹80-90 स्पेंड कर रहे हो, नथिंग अगेंस्ट इट। हम्म, बट अगर आप अर्न ₹100 कर रहे हो और आप स्पेंड 200 कर रहे हो क्रेडिट कार्ड, विच इज़ नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ मनी और फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से, वो हम्म, गलत है। हम्म, सो द राइट आंसर इज समवेयर इन द मिडल। हम्म, सो अगर आप ₹100 अर्न कर रहे हो और उसमें से आप 10-20 रुपए सेव कर रहे हो, इट इज़ अ गुड स्टार्ट। हम्म, उसमें से आप कुछ इन्वेस्ट करोगे, सेविंग्स एक नियर टर्म आपके जो गोल्स है उसके लिए भी आप पैसा बाजू में रखोगे। सो स्टार्टिंग स्लो इज़ वेरी गुड, बट हम्म, स्टार्टिंग इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, क्योंकि उससे आपको एक हैबिट लगेगी। हम्म, जैसे आप रीडिंग करते हो, राइट? अगर कोई एक नया रीडर है और आप बोलोगे कि एक दिन में एक बुक कंप्लीट करो, तो नहीं होगा, बिकॉज़ वो स्टार्ट ही नहीं होगा। हाँ, बट अगर आप हर रोज़ 10 पेजेस से स्टार्ट हम्म, करोगे धीरे-धीरे, सो वो हैबिट बिल्ड होगी। सो क्रिएटिंग दैट हैबिट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टिंग ऑल्सो टीचेस यू कि आपको स्पेंडिंग भी प्रूडेंटली करना है, हम्म, सोच समझ कर करना है। हम्म, सो इट इज़ अ हैबिट। इनिशियली क्रिएट दैट हैबिट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इवन इफ इट इज़ स्मॉल अमाउंट। ऑटोमैटिकली जब आप उसके बेनिफिट्स देखोगे, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, खुद से ही ज़्यादा सेव करना चाहोगे। when you are living a lifestyle away from your parents and maybe in a major city like Mumbai itself, हुँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू सेव बिकॉज आपके स्पेंडिंग नो मैटर इट्स नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो मे बी अगर आप पेरेंट्स से दूर रह रहे हो तो रेंट है, लाइट येस, बिल, गैस बिल, ऑल द बिल्स, देन गेटिंग ग्रोसरीज एंड उसमें ही लोगों की ट्रू, ऑलमोस्ट सैलरी खत्म हो जाती है। येस। तो इन सच सिचुएशंस हाउ डू यू मेक श्योर कि ठीक है, लाइक हाउ डू यू मैनेज योर मनी फर्स्टली एंड उसके बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में कैसे बाइफरगेट करोगे? सी ये एक पेरिनियल प्रॉब्लम होता है, और सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के पहले आता है अर्निंग्स। हम्म, तो ये जो आप बता रहे हो, ये प्रॉब्लम अर्निंग्स में है। हाँ, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन योर करियर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉब स्विच करो और सैलरी बढ़ा लो, बट हम्म, थिंक दैट कि ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है, राइट? हम्म, सो व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, इनिशियल 3-4 इयर्स आपको आपके करियर पे भी ध्यान देना है। डे हम्म, वन से इन्वेस्ट या सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद में इन्वेस्ट कीजिए इफ़ यू वांट टू। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग, स्पेशली मुंबई जब आप आते हो, तो इनिशियल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू या, मैनेज, आई एग्री। तो हम्म, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं माइंड नहीं करना है कि सेविंग्स नहीं हो रही है, इट इज़ ओके। क्योंकि अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हो, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आपका रोल चेंज होगा, आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। हुँ, और जैसे ही अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आप सेविंग स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ है, ये प्रॉब्लम दूसरे तरीका का भी हो सकता है कि आपका जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, जनरली होता है बिकॉज़ यू स्टे अलोंग विथ फ्रेंड्स, वीकेंड में आउटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। सो आपको वो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। अगर हुँ, वहाँ पे आप कट कर सकते हो स्पेंडिंग, वो भी एक तरीका है कि आपका थोड़ा स्पेंडिंग कम करें और देन स्टार्ट सेविंग्स, एंड उसमें से कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करें। सो दीज़ आर 2 वेज़, आपका हुँ, अर्निंग बढ़ाइए या फिर आपका स्पेंडिंग कम कीजिए। हुँ। इस ये 2 ही तरीके हैं। तो इन दोनों में से हुँ, आपको क्या लगता है, क्या कम है और कहाँ पे कमी है, वो आपको मैनेज करना फिगर है। आउट करना पड़ेगा और मेरे को लगता है कि एनीवेज़ आजकल ना लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ भी रहे हैं ज़्यादा बट इन अ वे एट टाइम्स वो उस फ्रस्ट्रेशन में भी फिर अटक जाते हैं कि ओके आई एम नॉट एबल टू स्पेंड ऑन एनीथिंग दैट आई वांट यस, क्योंकि मेरा सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ मैंने लॉक कर रखा है, यहाँ मेरे को इतनी सेविंग करनी है, ये यस। चीज़ खरीदना ही हुँ, है। तो मेरे को लगता है वो लूप भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है विद टाइम। यस, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड कि if a person has to start investing also, saving is one part of it and that यस, differs from person to person कि आपको कितना कहाँ सेव करना है वो आपके ऊपर है। But investment is something, obviously we can't categorize it या but somewhere we can still give ideas to कि हुँ, these are the type of investment that you can make. So I think younger audience still don't have that much idea where to invest and how to invest. यस। So now we would like to understand about that. ओके, सो ग्रेट क्वेश्चन। इन्वेस्टिंग जो है, ये एक काफ़ी लोगों को मिथ होता है कि इन्वेस्टिंग यानी लॉन्ग टर्म ही होती है, Hmm. रिटायरमेंट के लिए होती है। Hmm. वो सही नहीं है। इन्वेस्टिंग में भी आपको बकेट्स बनाने होते हैं। जैसे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना है। Hmm. और अगर हम जेनज़ीज़ की बात करें या यंग ऑडियंस Hmm. की बात करें, जो जस्ट पैसा कमाना स्टार्ट किया है, तो Hmm. इनके कई सारे जो नीड्स होते हैं वो अगले 3 साल या 5 साल में आएँगी। तो Hmm. जनरली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। क्योंकि अगर आप 25 या 30 साल के हो या 25 साल के हो, Hmm. आप
60 साल में आपको कितना कॉर्पस बनाना है, ये सोचना थोड़ा गलत होगा, हुँ, इम्प्रैक्टिकल भी है। हुँ। क्योंकि अगले 5 साल में आपके काफ़ी नीड्स आएँगी, आपको कार लेना होगा, घर के डाउन पेमेंट के लिए करना है, या फिर चलो घर नहीं लेते आजकल लोग, वो अलग बात है। यस। लेकिन मेबी कुछ और चीज़ों के लिए आपको सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो गई। हुँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, हुँ, बेसिक इक्विटी इंडेक्स फंड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी 3-5 साल के लिए ओके। इक्विटी डाल रहे हुँ, हो, हुँ, पैसा डाल रहे हो तो 5 साल तो चाहिए। हुँ, आप यहाँ पे धीरे-धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म करना है तो डेफ़िनेटली प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, इसमें आप एसआईपी डालकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, हुँ, बट क्यों करना है ये नहीं पता है। हुँ, सेव करना है बट क्यों करना है वो पता नहीं, ये पैसा मुझे कब लगेगा ये पता नहीं है। तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव आपके अगर क्लियर हो जाएँगे ना, हुँ, तो हुँ, हुँ, अ, आसान हो जाएगी कि प्रोडक्ट कौन-सा डालें या कहाँ पे निवेश करें, कैसे करें, ये ईज़ी हो जाता है। तो स्टार्ट विथ ऑल दीज़ क्वेश्चन हुँ, हुँ। और उसके हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हैं। दैट्स रियली इंसाइटफुल क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, स्टार्ट की थी, मेरे हुँ, लिए भी ऐसे था कि सारे दोस्त आस-पास कर रहे हैं, तो कहीं तो कुछ तो इन्वेस्ट करना है। हुँ। तो मैंने रैंडमली एक फ्रेंड को पकड़ लिया था और बोल दिया था कि आई वांट टू इन्वेस्ट, अब आप बताओ कहाँ करना है, क्या करना है? राइट, बिकॉज़ दैट पर्सन न्यू। बट आई फील इट इज़ बेटर टू नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग एंड देन फिगर आउट कि कहाँ का इन्वेस्ट करना है। राइट। अब जैसे हमने म्यूचुअल फंड बोला, इक्विटीज़ बोला एंड फॉर अ पर्सन स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट वो ज़ीरो नॉलेज के साथ ही स्टार्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली दे विल गो टू यूट्यूब, सर्च ऑन या गूगल, बट आई फील इट इज़ मच बेटर टू गेट एन एडवाइस फ्रॉम समवन हू हैज़ बीन इन द सेम इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग. So can you explain what mutual fund is, what equity is, and how you can go about राइट, investing in those? राइट। सो म्यूचुअल फंड क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज़ आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है? आपको ये इन्वेस्ट करना है। Hmm. तो इसके 2 तरीके हैं, आप एफडी में लगा सकते हो, आप बॉन्ड्स में लगा सकते Hmm. हो, आप इक्विटी जो लिस्टेड इक्विटीज़ है, कोई स्टॉक्स होते हैं जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, Hmm. रिलायंस, यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर लगाने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, कौन-सी कंपनी अच्छी कर रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये रिसर्च करना पड़ेगा। Hmm. अगर आपके पास वो समय नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, तो आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, एक टीम होती है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज होती है, Hmm. वो आपका पैसा लेते हैं। एक रेगुलेटेड एंटिटी होती है, सेबी जो रेगुलेटर है उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, वो पूरा यह पैसा लेकर Hmm. मार्केट्स में लगाते हैं और ऑन योर बिहाफ Hmm. एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसको हम बोलते हैं, Hmm. क्योंकि ये Hmm. फंड है Hmm. और वो मैनेज कर रहा है, उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। वो आपके बिहाफ पर ये फंड मैनेज करता है। वो पैसा कौन से स्टॉक में लगाना है, कौन से बॉन्ड में लगाना है, Hmm. गोल्ड में लगाना है, सिल्वर में लगाना है, बहुत सारे एसेट क्लासेस होते हैं। फंड के हिसाब से उस एसेट क्लास में पैसे लगाकर आपको रिटर्न बनाने का एक प्रयत्न करता है, Hmm. और इसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। सो म्यूचुअली एवरीवन इज कमिंग हियर, वो एक कॉर्पस बनता है और एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड होता है जिससे आपको रिटर्न्स बन सकते हैं। सो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, Hmm. समय नहीं है डायरेक्टली ये सब करने का, तो आप म्यूचुअल फंड्स में आकर आपका पैसे लगा सकते हो। आप आराम से सो सकते हो, जो फंड मैनेजर है Hmm. वो आपके बिहाफ पर आपका काम करेगा। Hmm. दैट इज़ म्यूचुअल फंड, सिंपल। नाउ म्यूचुअल फंड में अलग-अलग तरीके के फंड्स होते हैं, जैसे हमने बॉन्ड्स बताया। Hmm. बॉन्ड्स होता है, एक कंपनी अगर कोई बोरोइंग करती है, यानी लोन लेती है हाँ. और आपको एक बॉन्ड देती है, वो बॉन्ड हो गया। तो इसमें जो आपका रिटर्न होता है, वो क्या होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि अगर बोरोइंग किया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, Hmm. तो वो बॉन्ड्स हो गए। दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी होती है। दूसरे कमोडिटीज़ होती है। सो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो दोनों बॉन्ड्स में भी पैसा लगाते हैं, इक्विटी में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे 2-3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अभी हर कैटेगरी में, इक्विटी में और कुछ Hmm. अ, अलग-अलग तरीके, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ऐसे फंड्स होते हैं। डेट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। सो अलग-अलग फंड, बट मेन पॉइंट इज़ कि हर एसेट क्लास में जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एक म्यूचुअल फंड आपको मिलेगा। Hmm. और
आपके गोल्स के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड डालना है, कौन से एसेट क्लास में डालना है, और उसके हिसाब से आप वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। ओके। म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी सेम होती है या इट इज डिफरेंट, एंड इफ इट्स डिफरेंट, लाइक हाउ डू यू कैटेगराइज इट डिफरेंटली? सो म्यूचुअल फंड एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप अलग-अलग एसेट क्लास में पैसा लगा सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, हम्म। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, और हाइब्रिड हम्म। म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। ये एक मिथ है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी ही होता है। हाँ। म्यूचुअल फंड तो एक फंड है जैसा उसका ऑब्जेक्टिव है, जैसा वो बनाया गया है। अगर बॉन्ड में डालने के लिए है तो बॉन्ड्स वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे आपको अगर 5-10 दिन का पैसा लगाना है आप वहाँ पे लगा सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सो म्यूचुअल फंड एक ज़रिया है अलग-अलग एसेट क्लास में पैसे लगाने का, और हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो आपका जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, आपका जो टाइम होराइज़न है, जो गोल है, उसके हिसाब से आप अलग-अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। हम्म। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि रिस्क एबिलिटी कितनी है, हुँ, यूजुअली आई हैव सीन पीपल कि इफ दे आर स्टार्टिंग आउट, एट टाइम्स इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, हुँ, सो यू कैन गो ऑल आउट एंड यू कैन सी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो पीपल एंड अप लूजिंग अ लॉट. हुँ। So what would you suggest in those cases? Ki, do you need to be like very careful? Yeah, if you have a risk taking capacity, you should go all in. सो ये डिपेंड करता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के पहले, जैसे मैंने बताया प्रोसेस है कि आपको कितने समय के लिए पैसा लगाना है। Hmm. अगर आपको 5 साल 10 साल के लिए पैसे लगाना है तो आप हायर रिस्क वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं, Hmm. इक्विटी म्यूचुअल फंड Hmm. होते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हो, क्योंकि 1-2 साल में इसके रिटर्न नेगेटिव भी हो सकते हैं। Hmm. और सपोज़ आपने 2 साल का पैसा ऐसे इक्विटी फंड में लगा दिया और मार्केट नीचे गिर गया, तो आपका जो गोल है, वो आप रीच नहीं कर पाओगे। तो आपका टाइम होराइज़न सबसे पहली चीज़ है। अगर आपका टाइम होराइज़न लंबा है 5 साल, 10 साल, तो आप इक्विटी मार्केट में एंटर कर सकते हो, और Hmm. तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा रिस्क एपेटाइट। अभी रिस्क एपेटाइट हर इंसान का अलग हो सकता है, राइट? लाइक फॉर यू, इफ यू इन्वेस्ट से 10,000 रुपीज़, ये 10,000 का 9,990 भी होगा तो Hmm. आप पैनिक हो जाओगे। Hmm. तो आपका रिस्क एपेटाइट कम है। Hmm. वही अगर सपोज़ कोई और है, वो बोलेगा कि 10,000 मैंने डाल दिया, ठीक है 5,000 हो गया तो भी चलेगा, लेकिन 10,000 का 20,000 लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। तो Hmm. रिस्क एपेटाइट हाई है। सो आपकी जो एबिलिटी है कि आपने जो पैसा डाला है वो आप कम होते हुए देख सकते हैं या नहीं, ये आपको समझना है। अगर आप वो ओके हो उससे, अगर आप देख सकते हो कि 10,000 का शॉर्ट टर्म में कम हो और चलेगा मुझे क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ, तो आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज पैसा लगा दिया Hmm. इक्विटी मार्केट में Hmm. और अगले दिन सवेरे ओपन करके पोर्टफोलियो देख लिया। हाँ. तो वैसे नहीं चलेगा, Hmm. क्योंकि वहाँ पे फिर आपको मतलब आपकी धड़कनें तेज़ हो सकती ऊपर है। नीचे होती रही, हाँ. तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने पैसा डाल दिया और आराम से सो सकते हो, अगले दिन उठकर आपको उसकी वैल्यू देखने ना Hmm. पड़े, Hmm. ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो रिस्क एपेटाइट कम है तो हाइब्रिड और डेट म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करें। अगर रिस्क एपेटाइट हाई है और लंबे समय तक आपको निवेश करना है, तो शेयर बाज़ार वाले इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में Hmm. आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके. आई फील ऑल्सो ओवर द टाइम्स, जैसे व्हेन इट कम्स टू आवर पेरेंट्स जनरेशन, उनके लिए इन्वेस्टमेंट होता था, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट हुँ, कर दिया, दैट्स इट. बाकी इन्वेस्टमेंट होते थे वुड बी हाउस, गोल्ड, ज्वेलरीज एंड यस। दैट काइंड. Now the generation is switching more into investment, into mutual funds, हुँ, equity, etc., etc. How have you, because you have been in this industry, I'm sure आपने तो बहुत सारे ट्रेंड्स आते जाते देखे and you have seen the whole journey of it. हुँ। How do you feel it has changed over the years and what is the direction it is going into now? सो डेफ़िनेटली जो फ़िज़िकल एसेट्स है, 20-30 साल पहले जैसे आपने सही बताया, हमारे मॉम-डैड उनके लिए फ़िज़िकल एसेट सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो सामने दिखता था। हाँ. कुछ भी हो जाए मेरा घर तो मेरे पास रहेगा, कुछ भी हो जाए सोना तो मेरे पास रहेगा। तो एक सेफ्टी वाली जो नीड थी, वो काफ़ी जुड़ी होती थी फ़िज़िकल एसेट से। अभी Hmm. वो घर का वैल्यू कितना है हर कोई रोज़ गिनता नहीं है, Hmm. लेकिन वो सेफ्टी एस्पेक्ट था कि ये घर कोई लेके तो नहीं जाएगा। Hmm. और तभी बिलीव इन फाइनेंशियल एसेट्स उतना नहीं था, क्योंकि तब हम सिर्फ
स्कैम्स के बारे में सुनते थे। यस, केतन पारेख हो यस। गया, हर्षद मेहता हो गया, हुँ, डॉट कॉम हो गया, कोई कंपनी आ गई, पैसा लिया और भाग गायब गए, हो गई। हाँ। सो 90s में ये सारे काफ़ी चीज़ें हुई थी। क्योंकि इंडिया की भी जर्नी वहाँ पर जस्ट स्टार्ट हुई हुँ, थी, हुँ, हुँ। रेगुलेशंस अभी बन रहे थे। पिछले 20 सालों में लोगों ने देखा है कि फाइनेंशियल एसेट्स भी उतने ही सेफ है लॉन्ग टर्म में, जितना कि आपका घर है, जितना कि आपका सोना है। कोई पैसा हुँ, लेकर भागना बहुत मुश्किल है। अभी भी स्कैम होते हैं हुँ, अनरेगुलेटेड हुँ, मार्केट में, हुँ, हुँ। चिट फंड्स एंड ऑल, या लेकिन काफ़ी हद तक जैसे म्यूचुअल फंड्स है, बैंक्स है, बैंक एफडी पे लोगों को हुँ, हुँ, बिलीव हुँ। हो गया 90s और 2000s के बाद। अभी म्यूचुअल फंड्स में वो बिलीफ आ गया कि म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालते हैं तो कोई भाग तो नहीं जाएगा। हाँ, हुँ, ऊपर नीचे होगा, हुँ, लेकिन हुँ, लेकर भाग नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे ये बिलीफ बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों का विश्वास फाइनेंशियल एसेट्स पे बढ़ेगा, एंड हुँ, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने देखा है, अगर लंबे हिस्ट्री वाले मार्केट जैसे यूएस है, यूरोप है, अगर हम यहाँ देखें तो फाइनेंशियल एसेट्स ने डेफिनेटली रियल एसेट्स से ज़्यादा रिटर्न बनाया है, हुँ, और इंडिया में भी हमने वो देखा है। हुँ, तो ये ट्रेंड क्लियरली शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल एसेट्स में आपको लिक्विडिटी मिलती है। हुँ। अगर आप घर में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको घर बेचना है, तो 1 साल, 6 महीने, 1 साल तो या लग आराम जाएगा। से, हाँ। जो आप बिलीव करते हो कि मेरे घर की वैल्यू है, सपोज़ बॉम्बे में अगर डेढ़ 2 करोड़ का घर है, तो उससे 10-15 लाख भी नीचे की डील हुँ, हो सकती हुँ, है। हुँ, हुँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में या फाइनेंशियल एसेट्स में कोई, अगर आपने देखा कि ये वैल्यू है, उस दिन आप बेच रहे हो तो आपको वही वैल्यू मिलती है। सो लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नीड। सो रिटर्न के अलावा काफ़ी सारी फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते फैक्टर्स हैं। है, काफ़ी सारे फीचर्स है, वो फाइनेंशियल एसेट्स आपको कन्वीनियंस देती है। इसीलिए ये क्लियर शिफ्ट है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली जब जब कोई कंट्री डेवलप्ड होती है, धीरे धीरे फ्रॉम लो इनकम टू हाई इनकम ग्रो होती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ता ही है। और हुँ। वही ट्रेंड हम इंडिया में भी देख रहे हैं, और क्लियरली पिछले 5-10 साल में वो ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, जैसे आपने रिस्क एपेटाइट मेंशन किया तब आपने बोला था कि अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं, यू सी पीपल पैनिकिंग। हुँ, तो मेरा क्वेश्चन ये भी है कि यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते होंगे जो पोर्टफोलियो अब ऑब्वियसली ऊपर नीचे जाता रहता है, एंड लास्ट ईयर तो वी हैव सीन द हुँ, मार्केट ऑल्सो येस। क्रैश मल्टीपल टाइम्स। सो इन सच सिचुएशन हाउ डू यू हैंडल दैट chaos, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत क्लाइंट्स आके आपको बस रैंट करते होंगे कि ये क्या हो हुँ, गया, कैसे हो गया, and how will it go up, and in such times there is also no surety ki हुँ। when will the situation improve and when will it go back. So in such situations how do you handle the chaos? सी इन्वेस्टर आते हैं, अ, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी डील करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स होते हैं, Hmm. उनका काम तो और भी दिक्कत वाला होता है, क्योंकि उनको और भी ज़्यादा डिटेल में हाँ. उनके निवेशकों को समझाना होता है। अ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हमने देखा है अभी काफ़ी नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में आए हैं। हालाँकि हम पूरा प्रयास करते हैं उनको समझाने का, काफ़ी डेटा दिखाते हैं, सेशंस करते हैं, लेकिन लंबे समय में या मीडियम टर्म में जो एक्सपीरियंस से ये निवेशक सीखेगा ना, वो कोई सिखा नहीं सकता है। तो Hmm. अगर आप, एक छोटा बच्चा है, राइट, और उसको आप कहते हो कि ये चीज़ गरम है, उसको हाथ मत लगाइए, तो उसको पता ही नहीं गरम यानी क्या होता हाँ, है, क्या वो होता है? जस्ट सीख रहा है। हम्म. तो जब वो पहले बार जाके हाथ लगाएगा, तभी वो सीखेगा, हाँ, ये गरम है, अगले बार इसको मुझे छूना नहीं नहीं है। छूना. इक्विटी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट भी वैसे है। अगर आप समझाओगे कि यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, हम्म. पॉजिटिव रिटर्न्स है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। लंबे समय में ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऊपर-नीचे हो सकता है। जब तक आपका ₹10,000 9,050 होकर फिर से 11,000 नहीं होगा, तब तक आप वो एक्सपीरियंस लिए हम्म. बिना नहीं सीख सकते हो। हम्म. तो और मार्केट आज टीचर्स डे है। हाँ. मार्केट सबसे बड़ा टीचर होता है एक निवेशक को समझाने के लिए कि इसको कैसे डील करना है। तो आई थिंक सो एक्सपीरियंस से आपको समझेगा। दूसरा, इन्वेस्टर या जो भी नए इन्वेस्टर्स है, यंग हम्म. इन्वेस्टर्स है, उनको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपने जो निवेश किया है वो एक, आपने एक गोल सेट करके
लिया था। इट इज़ लाइक गेटिंग ऑन टू अ ट्रेन। जैसे आपको हम्म ट्रेन में यहाँ से वहाँ जाना है, तो बीच में जब लाइन चेंज होता है तो ट्रेन रुकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उतर जाना है, हम्म, आपको तो वेट करना है जब तक हाँ ट्रेन आपके स्टेशन तक ना पहुँचे। तो निवेश भी वैसे ही है, आपको लगे रहना है। आपकी अगर एसआईपी आप करते हो, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, आपको निवेश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले बार नहीं हो रहा है। जो मार्केट नीचे गया है या ऊपर या गया है, हम्म ये तो मार्केट का फीचर ही है। ये पहले बार नहीं गया है, 30 सालों में हर साल ऐसे होता है। शायद से आपके लिए पहले बार है। हम्म तो आपको डटे रहना है। तो हम तो यही बताते हैं, और आई थिंक सो इन्वेस्टर्स आर आल्सो वेरी स्मार्ट, हम्म स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स। हम काफ़ी बार बोलते हैं, बट दे आर वेरी स्मार्ट। योर जनरेशन इज़ वेरी स्मार्ट देन अस। प्लस हम्म आपका बैकग्राउंड अलग है, रिस्क एपिटाइट अलग है। आपने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखी है, तो डेफिनेटली योर एक्सपीरियंस इज़ गुड और नॉलेज अच्छा है। लोग समझते जल्दी है। 20 साल हम्म पहले जब हम समझाते थे, आज अगर मैं कोई जेनज़ीज़ को अगर मैं समझा हम्म रहा हूँ, देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज़ मच हायर देन व्हाट इट वाज़ व्हेन आई वाज़ मे बी 25 ईयर ओल्ड। हम्म तो थोड़ा-सा आसान भी है हमारे लिए फ़िलहाल तो समझाना। हाँ, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज व्हेन आई सी माय पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड ऑब्वियसली जैसे जो दिख रहा है उस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए ओके थे, बट व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग उनका फर्स्ट गो होता था कि नहीं नहीं फिक्स डिपॉजिट कर लो येस। या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो. एंड फॉर मी एज माई जनरेशन इज गोइंग ग्रोइंग एंड द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गेटिंग, मेरा वो होता है कि ये सब देखा जाएगा, मे बी म्यूचुअल फंड में हुँ, जाके इन्वेस्ट करूंगी, मेरे को शायद बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे. तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जेंजी का पर्सपेक्टिव चेंज हो अलग गया है। है. I'll come to investing घर पे, gold, this that. Before that, I want to know what is your ideology on crypto. ओके। Because crypto investment and crypto also like emerged in हुँ, maybe 2020 2021 के around और ज़्यादा hype होने लगा. हुँ। So it is also a new concept for many people, but what is your thinking about it? सी क्रिप्टो इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी जो Yeah. हमने देखी है, व्हिच Hmm. इज़ ब्लॉकचेन। Blockchain, yes. सो डेफिनेटली ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज़ केसेस है। फाइनेंशियल मार्केट्स में उसका यूसेज होगा। क्रिप्टो इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ Part of दैट। it. और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हालाँकि मैं भी Hmm. समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है बिहाइंड क्रिप्टो व्हिच इज़ ब्लॉकचेन इज़ very very useful, and like AI, blockchain also will change the world, the way we Hmm. store data, Hmm. the way transactions are being collated. जब क्रिप्टो की बात आती है, देर आर टू थिंग्स। एक, अगर आप उसको समझते हो पूरी Hmm. तरीके से, तो ही आपको उसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप नहीं समझते हो तो नहीं करना चाहिए। Hmm. दूसरी चीज़, वेदर इट इज़ लेजिटिमेट, वेदर इट इज़ रेगुलेटेड। Yeah. अगर वो रेगुलेटेड नहीं है, अगर आपकी कंट्री की गवर्नमेंट उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इट इज़ डेफिनेटली रिस्की टू इन्वेस्ट इन माय व्यू, बिकॉज़ Hmm. हम पूरे रेगुलेटेड वर्ल्ड से आते हैं। Yes. म्यूचुअल फंड इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। इतने अच्छे से रेगुलेट किया गया है, सरकार ने हर बार नए-नए इंक्रीमेंटल चेंजेस करके प्योर बनाया है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत Hmm. कम होते हैं, Hmm. क्लोज़ टू निल। बट कोई भी अनरेगुलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पर होते हैं, और आए दिन हमने देखे हैं वो स्कैम। Hmm. सो एटलीस्ट मेरा एडवाइस है, जब तक वो रेगुलेटेड ना हो, ऐसे कोई भी चीज़ में, वेदर इट इज़ क्रिप्टो और एनीथिंग, आपने निवेश या पैसा नहीं लगाना चाहिए। मेक सेंस, फेयर इनफ. ऑल्सो मेरे को लगता है कि आपको बहुत नॉलेज होगा इवन द फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट पीपल मेक. हुँ। सो आर देयर एनी लाइक 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट यू कैन से कि पीपल शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस? डेफ़िनेटली बहुत सारे हैं। हाँ. द टॉप 5 जो हम सुनते हैं या हम्म मैंने देखा है, तो सबसे पहली चीज़ है, लोगों को लगता है अगर फाइनेंशियल मार्केट में आप आते हो या स्पेशल इक्विटीज़ में आते हो, तो वो एक ज़रिया है बहुत जल्दी पैसे बनाने का। हम्म तो 21 दिन में पैसा डबल, ये नहीं है। ये हम्म सबसे बड़ी मिथ है, और वो एक बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है, जो पास्ट में रिटर्न्स आए हैं, यही रिटर्न आपको आगे मिलते रहेंगे, हम्म कोई भी एसेट क्लास के। ये दूसरी मिस्टेक है कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप आपका एक्सपेक्टेशन सेट करते हो कि यही रिटर्न बनेगा, और उस हिसाब से, बिकॉज आपकी अगर एक्सपेक्टेशन हो 20 30 40% रिटर्न की, और रिटर्न बना 12 15%, विच इज़ हम्म नॉट स्मॉल, विच इज़ गुड, बहुत अच्छा हम्म रिटर्न है, लेकिन फिर भी आप नाराज़ रहोगे,
तो आपने रिटर्न बनाया लेकिन नाराज रहोगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो सही करनी चाहिए। उसके बाद में अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, अगेन जहाँ पे ओवर प्रॉमिस होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू गेट स्वेड कि ओवर प्रॉमिस हो रहा है क्रिप्टो या कोई भी है जहाँ पर लुक्स फैंसी फ्रॉम आउटसाइड, लुक्स बट फैंसी हाँ फ्रॉम आउटसाइड, वहाँ पे पैसा डालना जो वो एक बड़ी मिस्टेक है। लास्टली फैड्स आते हैं, राइट? इन्वेस्टिंग में भी, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी फैड्स आते हैं कि ये सेक्टर अभी बहुत चल गया, पेपर स्टॉक्स बहुत चल गए, डिफेंस स्टॉक्स बहुत चल गए, इन इनके साथ बह जाना। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, ये और सबसे फंडामेंटल मिस्टेक जो करते हैं ग्रीड और फियर की, ये तो काफ़ी बुक्स में लिखा है कि आपको ग्रीडी नहीं होना है, और जब सब लोग डर रहे हैं तब आपको फियरफुल नहीं होना, आपको अपोजिट करना है। सो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो इन्वेस्टिंग में हमने देखे हैं, और पिछले 20 साल में यही मिस्टेक्स है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही होता है। तो अगर आप कॉकरोच देखोगे तो आप डरोगे, तो ये बिहेवियर चेंज होने के लिए टाइम लगता है, राइट? सो इन्वेस्टिंग में भी वही है, बिहेवियर्स डोंट चेंज, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आता है कि इसको डील कैसे करें। और मेरे को लगता है काफी लोगों की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि फ्रेंड से पूछ लिया कि वो किस राइट, में इन्वेस्ट कर रहा है, और वहां दिख गई ग्रोथ कि यस, हाँ ये तो ग्रो कर रहा है, तो फिर एब्सोल्युटली, मैंने भी ये तो डाल दिया। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हाँ, मिस्टेक है। ये तो मैं, क्योंकि यस। व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड आई हैव सीन माय फ्रेंड्स डूइंग इट एंड आई वाज हाँ, लाइक ओके बट ये दिस इज मिस्टेक नहीं है, हैपनिंग। वो सी आपका फ्रेंड शायद से सही एडवाइस भी दे आपको, तो दोनों साइड देखा है मैं, मतलब काफ़ी बार जो हम कल्चर देख रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है या म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, ये जो आपने कहा ये उसके वजह से भी आ रहा है कि आपके फ्रेंड ने आपको इंस्पायर किया कि पैसा डालो, और आपने स्टार्ट किया, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी जब आपका पैसा बना या डूबा, आपका फ्रेंड आपके पास नहीं रहेगा कि उसका पैसा क्या करना है, आपको आगे वो कंटिन्यू करना है या निकालना है। सो ये बोथ वेज है, कुछ जगह पे ये अच्छी बात भी है, कुछ जगह पे ये खराब भी होता है। सो आई वुड नॉट से इट इज़ अ मिस्टेक, बिकॉज अच्छी चीज़ से इंस्पिरेशन लेना लेना फॉर अच्छी गुड बात है, थिंग, इट इज़ हाँ। गुड। बट ओनली थिंग इज़ कि उसने जो पैसा लगाया वहीं पे आपने भी लगाना चाहिए या नहीं, ये आपका डिसीजन है। ये आपको समझना है कि उसका रिस्क एपिटाइट इतना है, सपोज क्रिप्टो में उसने डाला, आपको डालना है या नहीं डालना है, ये आपका डिसीजन है। प्लस वो भी है ना कि इंडिविजुअल अगेन रिस्क यस, कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब एब्सोल्युटली, से यू शुड बी नेविगेटिंग। यस, Okay, understood. Also, coming to few hot topics now. Coming to buying a house or renting ओह, it out, because I have seen my parents कि घर तो होना ही चाहिए खुद का, अगर यस, तुम एक शहर में रह रहे हो बहुत टाइम्स, एंड इवन एट दिस पॉइंट आई एम 25 एंड माई मॉम इज लाइक 3-4 साल में देख लेना, घर पे तो इन्वेस्ट करना ही करना है। एंड आई एम लाइक घर के कॉस्ट इतने सस्ते नहीं रहे एट दिस पॉइंट, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब एटलीस्ट अगर तुम एक बेस अमाउंट बना भी लोगे, इट इज स्टिल दी EMI इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, एंड आई पर्सनली आई एम स्कैर्ड ऑफ EMIs। मतलब मेरे को अगर आज के तारीख में आई एम बाइंग एन इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो ऑन एन EMI, मेरे को वो हर महीने धक धक होता रहता है कि यार ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड बी डूइंग? ओह, देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस थ्रोन। यस। सी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम्म, ठीक है? इंसान की जो बेसिक नीड्स है उसमें क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, मकान। ठीक है? तो मकान है, एक बेसिक नीड है। हम्म, नाउ अभी ये बेसिक नीड आपको कब पूरी करनी है, ये आपके ऊपर है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक फाइनेंशियल मैथ होता है उसके पीछे, और एक इमोशंस होते हैं। हम्म, इसका सही टाइम तब होता है जब आपके इमोशंस और आपका फाइनेंशियल मैथ मैच हो। मैच हो रहा इट इज़ लाइक, आई विल गिव यू एग्जांपल, आपको आईफ़ोन खरीदना है। है, ठीक है? अभी आईफ़ोन खरीदना है तो आपके पास पैसे है आईफ़ोन खरीदने के, और आपका इमोशंस भी है, तो आप खरीद लो। लेकिन इमोशनल नीड सबकी होती है आईफ़ोन खरीदने की, लेकिन आपकी फाइनेंशियल रेडीनेस नहीं है तो नहीं खरीदना चाहिए। हम्म, तो घर भी वैसे ही है। एंड ऑफ द डे हर इंसान को कहीं न कहीं एक शेल्टर तो चाहिए, हम्म, और हिस्टोरिकली हमने देखा है आवर कल्चर इटसेल्फ सिग्निफाइज कि आपका घर होना चाहिए। हम्म, अ, एक डेटा मैं देख रहा था आज, यूएस में एज पर दैट डेटा 65% हाउस होल्ड हैज़ देयर ओन हाउस। हम्म, इंडिया में, स्पेशली भारत में, हम्म, क्योंकि दैट
represents larger Yeah. part of our population. 93% people own their own house. तो हिस्टोरिकली हमारे इंग्रेन वही है, क्योंकि अगर आप मुंबई में नए हो, आपका कहीं मकान मॉम डैड ने लिया होगा, राइट? सो हिस्टोरिकली हम लोग वैसे ही है. महाभारत का युद्ध भी जमीन के लिए हुआ था, हाँ. राइट? गद्दी के लिए, किंगडम. सो फॉर अस टुडे द किंगडम इज आवर हाउस. तो वो चाहिए, लेकिन कब खरीदना है या कब रेंट करना है, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है. और अगर आप, जैसे आपके केस में, अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर EMI, it is not necessary to buy. If you are moving from one city to other city, it is not necessary to buy. It is easier to rent. Yeah. Maybe at a later stage, जब आपकी financial condition सही हो, जब आप फैमिली सेटल हो जाए, आपका जॉब सेटल हो जाए, यू कैन बाय अ हाउस. बट स्ट्रेच करके नहीं लेना चाहिए. सो बट यस, अगर इफ योर फाइनेंशियल math or financial situation allows you, then you can buy, you should buy, ideally. वही मेरे को लगता है पिछले कुछ सालों में ना द डिस्कशन हैज लाइक कंप्लीटली शिफ्टेड टू नहीं खरीदना तो नहीं चाहिए, रेंट ही करो. Yes. बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन गॉन देयर एंड दैट कैलकुलेशन डज मेक सेंस. बट अगेन कमिंग फ्रॉम अ वेरी इंडियन पर्सपेक्टिव, इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि तुम खुद का घर खरीद लो. सिर्फ फाइनेंशियल मैथ करके लाइफ नहीं चलती है ना. सो अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ है और आपको 50 लाख का घर लेना है, तो लेना चाहिए. पैसे एंजॉय करने के लिए है ना. And having your own house definitely gives you a different feeling. Yeah. Agreed. Because when you stay in a rented house, it will always in your mind be a rented space. Convenience है, काफी सारे चीजें हैं. जब तुम खुद का घर बनाओगे, उसमें तुम खुद की मेहनत भी डाल के बनाओगे, तो the value automatically is higher than that. Okay, now coming to jewelries and all, gold. So I'm 25 now. When I started earning, I had zero interest in gold. I have no interest in gold still, but अब मेरा ना perspective has changed कि not to wear, but for an investment it's good because the value keeps increasing. No matter whatever year it is, it's just going to increase. So in such situation, I feel gold is a good investment. So what is your opinion on that, and how would you suggest a younger person to think about it? See, gold in our culture again has always been an investment only. क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था और मम्मी या डैडी गोल्ड लेते थे, वो वही बोलते थे कि ये काम आएगा, पैसा इसमें सेफ रहेगा और बढ़ते रहेगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे. अभी उस टाइम पर फाइनेंशियल गोल्ड ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. आपको गोल्ड फिजिकल ही लेना होता था. तो गोल्ड इनहेरेंटली हमेशा हमारे मॉम डैड ने भी इन्वेस्टमेंट के लिए ही लिया है, बट ज्वेलरी फॉर्म में लिया क्योंकि तब वही फॉर्म अवेलेबल था. आज के तारीख में आपको ऑप्शंस है कि अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आपको फिजिकल ज्वेलरी लेने की ज़रूरत नहीं है. आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ले सकते हो, जिसमें ETFs, गोल्ड ETFs या गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स, जो कि आपका पैसा लेकर गोल्ड एज ए एसेट क्लास उसमें डालते. 99.99 प्योरिटी का गोल्ड मिलता है आपको इन अ टैक्स एफिशिएंट वे. आपको सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आज फिजिकल गोल्ड अगर आप लोगे, सपोज कॉइन आपने ले लिया, आपको कहीं रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सेफ है नहीं है, बैंक में लॉकर में डालना पड़ेगा. तो लॉट ऑफ कन्वीनियंस कम्स इन फाइनेंशियल फॉर्म ऑफ गोल्ड. तो डेफिनेटली गोल्ड हैज़ ऑलवेज बीन एन इन्वेस्टमेंट. आज अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है तो एक कन्वीनियंट ऑप्शन अवेलेबल है अदर देन ज्वेलरी, विच इज़ गोल्ड ETFs या गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स, उसमें आप डाल सकते हो. और एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड डेफिनेटली मेक्स सेंस, नॉट बिकॉज अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न आए हैं क्योंकि 1,10,000 के आसपास हो गया है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट हिस्टोरिकली क्या होता है, जब आपके पास इक्विटीज़ है, कुछ अलग दूसरे एसेट क्लास है, जब वो परफॉर्म नहीं करती है, जब वो आपको रिटर्न नहीं देते, तो गोल्ड आपको रिटर्न देता है. तो वो थोड़ा सा कुशन होता है. तो इसीलिए गोल्ड इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट. थोड़ा पोर्टफोलियो का जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है वो गोल्ड में होना चाहिए. ट्रू. मतलब फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड, जीरो नॉलेज ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एंड आई फील इट्स वेरी
wrong in our education system also कि ये चीज़ पहले included नहीं है, because once you start earning इतनी सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं and you don't know how to go about it, राइट। because financial knowledge zero. If you come from a science background, definitely कुछ सिखाया नहीं गया. It's because obviously the study material includes everything, that's physics, science, chemistry, बट दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो इक्वली नेसेसरी, या क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था टैक्स का जीरो नॉलेज है मेरे को. टू दिस पॉइंट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड नाउ वॉट इट इज, बट वेन आई स्टार्टेड मेरे को नहीं समझ में आ रहा था और मैं तो ऐसे ब्लैंक हो जाती जब ITR फाइलिंग का पहली बार बोला गया. एंड आई स्टिल सी दैट विद लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर नाउ स्टार्टिंग having the same trouble. So, do you feel that this should have been a subject that would have been maybe inculcated in your college or school, would have actually helped a lot of people? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि लाइफ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है या फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट Yeah. स्किल है, वो हमें नहीं सिखाई जाती है. ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में भी हम पैसे के बारे में बात जनरली नहीं Hmm. करते हैं बच्चों के साथ या फिर अपने भाई बहन के साथ. वी थिंक मनी डिसीजन इज़ वेरी वेरी पर्सनल, इट इज़ पर्सनल, और उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं. लाइक यू नो वी डोंट टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन ओपनली. Hmm. सिमिलरली हम पैसे के बारे में भी घर में Hmm. बात नहीं करते, विच इज़ चेंजिंग स्लोली, Yeah. बट इट विल स्टिल टेक टाइम. तो फाइनेंशियल या पर्सनल फाइनेंस आपको स्कूल में या कॉलेज में डेफिनेटली सिखाया जाना चाहिए. एटलीस्ट बेसिक्स कि क्या होती है, आई मीन हाउ डू यू, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे चलता है. एंड इट विल एक्चुअली ऐड लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज जैसे आपने बताया काफ़ी लोग अर्निंग स्टार्ट करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज स्पेंडिंग वर्सेस Yeah. इन्वेस्टिंग Yeah. एंड सेविंग. स्टार्टिंग से अगर आप सीखोगे, इट इज़ अ एज. Hmm. एंड यू नो आपका टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत बार जब तक आप सीखो तब तक 30-35 के हो जाते हो, और यू वुड हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स. Yeah. एंड it would actually help a lot of people, so definitely it should be part of Hmm. our curriculum, Hmm. at least in college. Yeah. Yeah, I feel मतलब स्कूल में तो you're still very young to understand what it is, but in college आपको पॉकेट मनी मिलना चालू हो Yeah. जाती है, आप थोड़े बहुत अपने फाइनेंस एटलीस्ट मैनेज करना तो स्टार्ट कर देते हो. सो कॉलेज वुड एक्चुअली बी अ Yes. ग्रेट टाइम टू लर्न अबाउट इट. Okay, now coming to like obviously investment and all we'll discuss much more in detail, but I also want to know when it comes to investing in a car or something, जैसे with a home or a jewelry, gold for that matter, your money is obviously going to Hmm. make sense in a longer run also, even if you're investing a Hmm. lot. But I have seen a lot of people also who are crazy about cars in matlab, and obviously car can't be your big chunk of your investment. It can be a part, it is again considered as a luxury and not Hmm. investment till now. So do you feel people should be investing a lot of money in that, या do you feel नहीं यहाँ पे तो उनको save कर लेना चाहिए? So car is a spending, not an investing, Hmm. because it is a depreciating Yeah, asset. yeah, यानी yeah. आप कार शोरूम से बाहर निकालोगे 20% डेप्रिशिएट हो चुकी Hmm. है, तो इट इज़ अ स्पेंडिंग. Hmm. इट्स अ डिबेट कि आपको कितना स्पेंड करना चाहिए Hmm. कार पर. नाउ सी, कार टुडे इज स्टिल अ लग्जरी. अगर आप हैचबैक कार लो या फिर सिडैन लो या फिर एसयूवी लो, इट इज स्टिल अ लग्जरी इन इंडिया. इट इज नॉट अ नीड, Yeah. इट इज अ वांट. ऑल दीज थिंग्स यूजुअली कम जहाँ पर आपका जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए. लेकिन ऑल्सो इट इज़ अ लाइफ स्टाइल स्पेंड. Yeah. अगर आप यू नो व्हेन यू जस्ट स्टार्ट योर यू नो अर्निंग जर्नी, आपको चाहिए एक कार चाहिए वेर यू कैन गो आउट एंड ऑल. सो इट इज़ अ वांट, इट इज़ नॉट अ नीड. अगर आपकी फाइनेंशियल यू नो जो सिचुएशन है वो अगर आपको अलाउ करती है, तो यू शुड बाय. देयर इज़ नो हार्म इन बाइंग अ कार, बिकॉज इन इंडिया only maybe 7 or 8 households have a car. Yeah. So long way to go. People are not overspending on car, Hmm. apart from maybe a small segment. Hmm. But yes, definitely you should. लेकिन एक उसमें चीज़ आपको ध्यान में रखना है that आपकी अगर सैलरी 100 रुपये है, तो उसमें से 50-60 रुपये आप कार ईएमआई नहीं देना चाहिए आपने. Hmm. ऑफकोर्स ईएमआई से आपको कन्वीनियंटली कार इमीडिएटली मिल जाती है, बट यू शुड मेक श्योर दैट योर ईएमआई यूजुअली should not be more than 30% of your overall salary.
मंथली सैलरी. Hmm. अगर उसके बीच में है तो डेफिनेटली यू शुड एंजॉय योर मनी. You were just talking about EMIs, and as I said that I am someone who's really scared of EMIs. So if someone is going for an EMI, maybe for any purpose, what is your take on it? मतलब कितना आपने mention तो किया कि 30% should be the maximum that they put in, but is there like a minimum to maximum cap, या इससे ऊपर भी लोग जा सकते हैं, या people should just stop at 30%? सी 30% इज कंफर्टेबल, राइट. Hmm. 30% के ऊपर जैसे ही आप जाते हो, देन आई थिंक सो लॉट ऑफ अदर थिंग्स क्रीप इन. आप सेव नहीं कर पाओगे, आप Hmm. इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. ऑल्सो अगर 30% या 40% के ऊपर जाते हो, इट बिकम्स अ हैबिट, Hmm. और ओवर स्पेंडिंग की हैबिट, राइट. Hmm. देन यू वोंट स्टॉप एट 50. देन यू कैन गो टू 60, 70, Hmm. 80, 90, 100 ऑल्सो. और Hmm. आप तो बोलोगे सैलरी तो बढ़ेगी, ठीक है चलो, बट देन it is being disciplined. Hmm. So 30 is actually to inculcate that discipline, ताकि आप ओवर स्पेंड ना करें, और बाकी भी जो चीज़ें आपकी वो सही से हो जाए, वेदर इट इज़ सेविंग, इन्वेस्टिंग, या एंजॉइंग अदर थिंग्स इन लाइफ. सिर्फ Hmm. ई एम आई पे अगर हो जाए तो इट बिकम्स अ डेट ट्रैप. Hmm. बिकॉज अगर आप 50-60% ई एम आई अगर हो जाए और आप मॉल में चले गए और आपको कुछ लेना है, तो आप सैलरी से स्पेंड नहीं कर पाओगे, Hmm. तो आप क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करोगे. सो देन इट बिकम्स अ डेट ट्रैप. Hmm. Coming to credit cards also, when I started, my clear perspective was like credit card तो नहीं चाहिए. But eventually I had to apply for a loan and things, and then I figured out कि how important having a credit score is. Yes. And that's where I figured out, okay, having a credit card is important. And I feel बचपन से seeing your parents, and parents don't want to be in debt, they don't want to Yes. experience credit card वाला thing. So हमेशा ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं क्रेडिट कार्ड से तो दूर ही रहना है. But I think right now the stage that we are in, credit card is most important, and once you start earning and you have a good decent amount, you should apply for credit cards. Because firstly, obviously you will get a lot of credit card wala calls कि हमसे कार्ड ले लो, हमसे कार्ड ले लो, but to get the right card at a good valuation, it is difficult. Because obviously वो आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे and they'll see how much it is, and then eventually you will get it. Because I have seen 2-3 friends also getting rejected for credit cards. And हमको लगता है कि बहुत easy process है यार, आज अप्लाई कर देंगे कल मिल जाएगा, but it doesn't happen. And I feel ये knowledge भी कभी किसी ने provide ही नहीं की, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि how important it is. So I would like you to shed some light into it, so that people eventually, obviously making sure कि you are not going into the credit card का whole loophole where you are stuck with like 5-6 Multiple credit cards credits, and then you're just stuck. But at least a way of spending should be also through credit card, to understand कि नहीं, this is also important to build your CIBIL score. सी क्रेडिट कार्ड इज गुड टू हैव, जब तक आप उसका यूज रिस्पॉन्सिबली करो, इट इज गुड. बिकॉज क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इट इज लाइक योर इमरजेंसी फंड. Yeah. इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज इट, राइट. ऑल्सो अगर क्रेडिट कार्ड को आप स्मार्टली यूज करें, एंड आई डोंट हैव टू से दैट बिकॉज काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स है, आई मीन दे टॉक अबाउट हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड. ऑनेस्टली मैं इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता हूँ उसको, ऑल दोज रिवॉर्ड्स एंड ट्रैकिंग दोज, बट देर आर वेज. बट वहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन होना होता है, ओनली देन यू कैन टेक बेनिफिट. एंड जैसे आपने लास्ट बेनिफिट बताया, डेफिनेटली योर क्रेडिट स्कोर. सो क्रेडिट स्कोर इज बेसिकली आप कितने बार क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और कितना जल्दी और एफिशिएंटली उसका पेमेंट कर रहे हो. इट शोज योर इंटेंट टू पे बैक क्रेडिट या लोन, ऑल्सो योर एबिलिटी टू शो. तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा. लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आप खराब तरीके से यूज करोगे, इफ यू गो अप टू 80-90% ऑफ योर लिमिट, इट विल रिड्यूस योर स्कोर. इफ यू गो इफ यू हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स और हर क्रेडिट कार्ड पे आप यूसेज कर रहे हो 70-80%, आपने एक भी डिले कर दिया, it can definitely spoil your credit score. So credit card is like a double-edged sword, especially when you just start earning. Impulsive buying karna is very easy through a credit card, because the moment you have 2-3 lakh limit, आपको लगता है इतना पैसा मेरे पास है, but it is not with you, it is a loan granted to you. And it is very easy to spoil your money or finances through usage of credit card. So it is important, you can have it, but usage
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर एक सिंपल नजेस है जहाँ पे आप हम्म क्रेडिट कार्ड का यूसेज ठीक कर सकते हो. जब आप शॉपिंग पे जा रहे हो, डोंट कैरी अ क्रेडिट कार्ड, राइट? डोंट कैरी अ क्रेडिट कार्ड. ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपके वॉलेट में मत रखिए, हाँ बराबर से यूसेज सही हो जाता है. एंड नेवर एवर डिले एनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट. इफ यू कांट मेक अ क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन फर्स्ट मंथ, एक बार इंस्टेंस हुआ तो समझ लो दैट इट इज नॉट मेंट फॉर यू. या I think so. Responsibly use karo. It will definitely be a good help in your managing your money and credit scores and everything else. completely agree with that because I've seen people spending recklessly also, and obviously it is Yeah. mostly for shopping only. बाकी सब चीजें sideline ही होती है. Also, I heard you in a podcast talking about health insurance and life term insurance, and when we obviously जैसे मैंने बोला कि information zero होती है, eventually we get to know about कि ठीक है health insurance में भी डालना है, life insurance में भी डालना है, and somewhere at times our parents also sort it out. And there are a few companies when you join they give you health insurance, Yeah. but people I feel also should have an health Yes. insurance outside your company, because again limit differs, and that limit makes a huge difference when someone is actually getting hospitalized. And when you're earning, not having a knowledge is still fine, but eventually your parents are growing old, you will obviously might need at any circumstance, you never know. Yeah. So having it is important. So how would you suggest for a young listener listening to this, how do they go about it, how do they do their research for this? So having a health insurance is most important. क्योंकि जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस Hmm. हो रही है एंड ऑल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ हेल्थ कवर इफ़ यू कैच अप एनी क्रोनिक डिसीज. Hmm. एंड 25 में तो हम मोस्टली सब लोग फिट होते Yeah. हैं. जेनेटिकली इंडिया में पीपल आर टफ एंड Hmm. स्ट्रांग. Hmm. बट इन 30s वी आर सीइंग कि काफ़ी लाइफस्टाइल Yeah. डिजीजेस होती है. तो आपको शायद से हेल्थ कवर मिलेगा ही नहीं, अगर मिला तो बहुत महंगा मिलेगा. Hmm. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन हेल्थ कवर. भले छोटा अमाउंट 5 लाख से भी अगर आप स्टार्ट करोगे इनिशियली, आपके कंपनी का है, तो अगर Hmm. कोई क्लेम होता है आप आपके कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस कवर से आप पे कर सकते हो. Hmm. इसको हाथ ना लगाए. लेकिन अगर आप उसको 5 साल 10 साल कंटिन्यू करोगे तो दो चीज़ें होगी. एक, इन केस आपका कोई अनफॉर्चुनेटली डिजीज हो जाए, Hmm. क्रॉनिक डिजीज, वो कवर हो जाता है, प्री Hmm. एग्जिस्टिंग डिजीज गेट कवर्ड. सेकेंड, आपका जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कवर है आप उसको टॉप अप कर कर बढ़ा सकते हो. अमाउंट 5 का Hmm. 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो. सो इट एक्चुअली हेल्प्स. प्लस इन केस आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं दूसरे कंपनी में कवर है नहीं Hmm. है. इवन इफ इट इज़ देयर, आपके पेरेंट्स कवर हो रहे हैं नहीं कर हो रहे हैं. तो इसलिए हैविंग योर ओन हेल्थ इंश्योरेंस, इवन इफ यू स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ 5 लाख इनिशियली, ये चाहिए. धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएं. Hmm. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आप उसको अमाउंट को बढ़ा सकते हो. बट हैविंग इट अर्ली इन योर करियर और लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील वही बहुत टाइम ना ये हो जाता है कि पीपल वांट टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस, बट वो फिर वो थॉट आती है ना कि पैसे तो इन्वेस्ट हो रहे हैं, बट इसका तो रिटर्न कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो नहीं पता, तो फिर क्यों ही करे. सो पीपल यूजुअली निग्लेक्ट इट, सी व्हिच शुडंट बी द इंश्योरेंस इज केस. बेसिकली अ प्रोटेक्टिंग नेट. उससे हम्म. आपको रिटर्न नहीं मिलता है. इट हाँ. इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट. हम्म. प्रॉफिट करने के लिए इंश्योरेंस होता ही नहीं. इट इज़ टू प्रोटेक्ट. बिकॉज या. इन केस, एंड आई हैव सीन जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक मेडिकल क्राइसिस पूरे फैमिली को बैंकरप्ट कर सकता है. हम्म. इट इज़ सच अ पावरफुल थिंग. या. सो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस, एंड वी हैव सीन स्पेशली इन लोअर इनकम ग्रुप्स एंड ऑल, जहाँ पे अगर हेल्थ कवर नहीं है, just one crisis, they are just one crisis away, health crisis away from being Hmm. bankrupt. Hmm. It is very very important to Yeah, have. I feel people don't realize this, Yes. and once they start realizing, at times they also feel कि it's too late. Yeah. But I have recently understood how important it is to have a health insurance. I Yeah. would also like you to talk a little bit about life insurance as well, लाइफ because इंश्योरेंस ऑल्सो. और लाइफ इंश्योरेंस की एक खासियत है, अगर आप सपोज आप 25-26 के हो, uh, आपने लाइफ इंश्योरेंस कवर ले लिया, सपोज 1 करोड़ का लिया फॉर हम्म. इंस्टेंस, आपका जो प्रीमियम है ना वो सेम रहेगा 50-60 साल तक, जब तक आप Oh. कंटिन्यू कर रहे हो. हम्म. हेल्थ इंश्योरेंस में तो बढ़ता है. Yeah. तो अगर आप जल्दी लोगे इंश्योरेंस, आपका जो प्रीमियम है वो बहुत कम होगा और वो सेम रहेगा. Hmm. तो अगेन
हैविंग इंश्योरेंस अर्ली इन लाइफ एक्चुअली हेल्प्स। तो आपका नुकसान भी कम होगा। आप अगर सोच रहे हो कि मैं हाँ। पैसा डाल रहा हूँ रिटर्न तो नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस अगेन इज नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो। या तो वहाँ पर आपको बहुत कम प्रीमियम में मिल जाएगा हम्म 25-30 साल में। और जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने बोला कि आप कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस में उल्टा है, आप ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा करोगे ईएमआई आपका, ये प्रीमियम आपका कम ही रहेगा। और वो से फॉर इंस्टेंस अगर आप 30 ईयर्स के बाद 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं तो अमाउंट बिकम्स ऑलमोस्ट मे बी 30-40% हायर देन हम्म द प्रीमियम वुड हैव बीन एट 25 when years you were age. starting younger. Yes, I feel this is one of the aspect which people ignore, Yes. because obviously people know about mutual funds and equity by this point, but health insurance में डालना पैसे या Yeah. life insurance में डालना, people are still unaware of it, which people eventually Yes. process, because बहुत बार यही होता है कि पेरेंट्स ने इन्वेस्ट डाल रखा है ना, है एक हेल्थ इंश्योरेंस, देखा जाएगा जब सिचुएशन आएगी, but people need to be more Yeah. into that nowadays. With Gen Zs there are also a lot of people who think यार इन्वेस्टमेंट क्यों ही करनी है, एक ही जिंदगी है, YOLO वाला YOLO. concept. So do you think people should get out of it and like seriously think about investment? Because fun aspect, yes, it is important to enjoy your life also, but having a balanced life is also important. Hmm. बिकॉज आई नो अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि यार अगर कल को मैं मर गया तो मैं पैसे बचा के क्या करूंगा, तो है वो आज की जिंदगी जीते हैं, विच टू फ्रॉम अ वेरी आउटसाइड परस्पेक्टिव सीम्स फन टू लिसन टू, Yeah. but eventually you never know when you might require money. Right. So in that situation how do you approach this Gen Zs and would convince them कि नहीं भाई invest करो? See, हमने एक लाइन लिखी है बुक में, इट इज गुड टू बी योलो टिल द टाइम यू आर सोलो. हाँ. Eventually, even if you don't get married, you have parents who may be dependent on you, you never know. आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्लान अहेड. तो आपको इन्वेस्टिंग सेविंग करनी ही पड़ेगी. इनिशियली यस, आपका जो पैसा आप अर्न कर रहे हो, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ द वे यू वांट, बट एट सम स्टेज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. यू हैव टू थिंक कि इन केस माइंड चेंज हो सकता है कि आज मुझे शादी नहीं करनी है, कोई मिल गया तो मैं करूँगा शादी, एंड आफ्टर दैट यू कैन देन स्टार्ट, इट माइट बी लेट. तो इसीलिए कुछ, और चलो आप सोलो भी हो, एट सम पॉइंट इन टाइम आपकी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है, तो आपको बचाना ही पड़ेगा. सो योलो इज गुड इनिशियली इन योर लाइफ, बट धीरे धीरे आप सोलो नहीं होते हो. यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट कि आगे क्या होगा, कॉर्पस कैसे बनेगा. तो इन्वेस्टिंग इज फॉर एवरीवन, वेदर इट यू वांट टू लिव योलो लाइफ और एनी लाइफ. Makes sense. ठीक है. Also, if someone is investing for the first time, like a first time investor, what should they go for? And if SIP is the first thing that they should go for? सो SIP एक ज़रिया है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का. SIP इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर Hmm. सकते हो. सो नो अमाउंट इज स्मॉल टू स्टार्ट विथ SIP. ऑल्सो हर महीने आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट जाता है, हाँ. जैसे टैक्स कटता है. हाँ. तो आपके पास कोई पावर नहीं है, Hmm. तो इट इज़ लाइक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट है. Hmm. तो जब आप SIP करते हो तो क्या होता है, आपकी सैलरी आती है, उसमें से इन्वेस्टमेंट कट हो जाता है, जो बाकी बचे पैसे हैं उससे आप स्पेंड करते हो, विच इज़ द गोल्डन रूल ऑफ मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस की. अर्निंग्स आई, उसमें से आप इन्वेस्टमेंट निकालो, जो बचा है उसमें आप स्पेंडिंग करो. Hmm. सो ये पूरा ऑटोमेट हो जाता है. सो फ्रॉम अ बिहेवियर एंड डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू SIP बहुत अच्छी है. दूसरा बेनिफिट है कि मार्केट ऊपर नीचे चलते रहता है. SIP हर बार आपको खराब मार्केट में भी ज़्यादा यूनिट्स देती है, तो वैल्यू एवरेजिंग जिसको हम बोलते हैं, कॉस्ट टू पी एवरेजिंग होती है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप छोटी SIP भी स्टार्ट करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट रियलाइज कि कितना बड़ा आपने कॉर्पस बना लिया. सो फ्रॉम डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मार्केट की जो जो उतार चढ़ाव है उससे बचने के लिए SIP इज़ अ गुड थिंग. सो डेफिनेटली एवरीवन शुड स्टार्ट एन SIP. कहाँ पे करे ये आपका डिसीजन है. अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र, इनसे एडवाइस ले, इनसे गाइडेंस ले और वहाँ पे स्टार्ट करे.
अगर आपको नहीं पता है तो बुक पढ़िए थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगा। बेसिक इंडेक्स फंड्स से स्टार्ट कीजिए। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स या लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड्स जो सिंपल होते हैं उसमें आप एक ही फंड से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप सीखोगे, गिरोगे, उठोगे एंड देन लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट। मेक सेंस। ऑल्सो आपने मेंशन किया कॉर्पस के बारे में। हम्म आई फील व्हेन यू स्टार्ट यू हैव जीरो नॉलेज की कॉर्पस बिल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज you will have your credit cards to make emergency payments and everything, but having a corpus is also very essential when there is an emergency situation like हम्म that. So what do you think people should be keeping a part of their savings as a corpus amount कि ये हर महीने मेरे को इतना डालना ही चाहिए if a person is starting from like a 25,000 salary? ओके, सो सी ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट जनरली इट इज़ ऑलवेज गुड कि आपका जो इमरजेंसी कॉर्पस है वो आपका मिनिमम 6 मंथ्स का जो खर्चा है उसके आसपास होना चाहिए, मिनिमम कॉर्पस। बिकॉज इन केस यू आर सिक, यू आर नॉट एबल टू अर्न मनी, 6 महीने तो आपका खर्चा पानी चल जाए। तो 6 महीने इज़ अ बेसिक रूल। अगर इफ़ यू हैव लाइबिलिटीज़, अगर आपका लोन है तो ये लोन भी उसमें ऐड करे जो ईएमआई है। जो भी आपका ईएमआई प्लस मंथली खर्चा है इसका मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम मे बी 12 मंथ्स का आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस। Okay. I would like to understand from you. Can you break down the type of investment that people should make in terms of risk? Low risk वाले ये है, high risk वाले इसमें है, तो in case you want to invest, this is how you can go about it. सो अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए निवेश करना है तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपका जो भी एज हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपको 1-2 साल के लिए ही निवेश करना है तो आप एफडीज में कर सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जिसको हम इक्विटी सेविंग्स फंड बोलते हैं, कहते हैं, उसमें आप कर सकते हो। अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हो जैसे 5 साल या बियॉन्ड, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स बोलते हैं, या मैंने आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स Sensex, इंडेक्स हाँ. फंड्स की बात की, आप यहाँ पर निवेश कर सकते हो। सिंपल रखे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर्सनल फाइनेंस या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। ये 3-4 कैटेगरी आप देखो और बकेट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से अगर आप निवेश करें तो लगभग 70-80% आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो कंप्लीट और कवर हो जाती है। Person watching this wants to understand कि कितने सैलरी का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, सेविंग्स में जाना चाहिए, इतना स्पेंडिंग होना चाहिए. हाउ वुड यू गिव दैट ब्रेक डाउन फॉर एनीवन वाचिंग? सो हमने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क डाली है बुक में। एंड व्हेन यू स्टार्ट, आप जब आपके 20s में हो तो जैसे आपने बताया बड़ी दिक्कत होती है, रेंट भरे, आउटिंग करे, मूवी देखे, तो एटलीस्ट स्टार्ट सेविंग 10%, स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग 10% ऑफ योर सैलरी टिल यू आर इन 20s। क्योंकि आपकी इनकम भी कम होती है वहाँ पे, धीरे धीरे बढ़ती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो 10% से स्टार्ट कीजिए मिनिमम। अगर आप 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, मिनिमम इज 10। वंस यू आर इन योर 30s, जहाँ पे आपकी जनरली इनकम बढ़ती है, आपके जो खर्चे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी काफ़ी कम हो जाते हैं, मंथली खर्चे, वहाँ पर आप 30% मिनिमम ट्राई कीजिए। सो व्हेन यू आर इन 30s, मिनिमम 30%। जैसे ही आप 40s में जाते हो तो आपकी इनकम जो है जनरली, इट इज़ एट अ वेरी गुड लेवल, पीक पे होती है करियर के। जनरली आपकी ग्रोथ हो चुकी होती है 15-20 साल के करियर में, एंड इफ़ यू हैव डन वेल इन योर करियर, सैलरी अच्छी खासी होती है। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री। वहाँ पे आपको मिनिमम 50% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट और सेव करना चाहिए। सो इट्स अ सिंपल 10-30-50 रूल। मिनिमम, अगर ज़्यादा करे तो बेहतर ही है, बट मिनिमम इतना होना चाहिए। वेरी पर्सनल क्वेश्चन ऑन टू दिस, जैसे Sure. आपने बोला कि 50% तो होना चाहिए वंस यू आर एंटरिंग योर 40. अब मी एट 25 आई एम एबल टू, चलो 10% तो सेव हो जाता है, somehow you manage to do that, but eventually when my responsibilities increase, marriage, kids, even taking care of parents, तब 50% अगर sitting right now, it feels very difficult for me क्योंकि 10% ही मुश्किल से सेव हो रहा है, क्योंकि ये बिल वो बिल, क्रेडिट कार्ड, ये वो, प्लस खुद के भी खर्चे है ही है, राइट।
इन दैट टेकिंग केयर ऑफ दैट, बिकॉज पेरेंट्स का होता है ना कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी बच्चे कर लो, बट बैक ऑफ आर हेड जो हमारी कॉन्वर्जेशन ऑफ लाफ्टर ऑल्सो इज कि यार आजकल के बच्चों की स्कूल फीस ही 1 लाख रुपए है, वो ही कहाँ से हम अरेंज करेंगे जब खुद के खर्चे नहीं निकल पा रहे। राइट। तो इन दैट सिचुएशन फॉर मी एज अ पर्सन थिंकिंग कि ओ 50 years जब मैं पहुंचूंगी वो 50% सेव करना है, सीम स्कैरी। तो हाउ कैन अ पर्सन मैनेज दैट एंड बी लाइक नहीं नहीं हो जाएगा सब? सी अभी स्कैरी लगता है, बट बिलीव मी, क्योंकि अगर आप 7 8 साल 10 साल 15 साल करियर में स्पेंड करोगे, एंड इफ यू डू वेल, एंड जनरली हम्म। पीपल डू वेल, हम्म। आपकी इनकम भी बढ़ती है। हम्म। जब इनकम बढ़ती है और आपके खर्चे आप उतने टाइम से बढ़ाते नहीं हैं, हम्म। तो डेफिनेटली इट बिकम्स ईजी टू सेव मे बी 30% इन योर 30s, 50% इन योर 40s। इट इज़ हम्म। ईजी। हम्म। वो कब डिफ़िकल्ट होगा? जब आपका जो लाइफ़स्टाइल स्पेंड्स है, हम्म। वो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत बार ये दिक्कत हो जाती है कि आपने ल आपकी आज एक बेसिक लाइफ़स्टाइल है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई, सपोज़ 1 लाख से इंक्रीज़ होती है, हम्म। और आपके खर्चे हर साल 2 लाख से बढ़ रहे हैं, देन इट विल नॉट बी। Will not make इसीलिए सो sense. दिस फ्रेमवर्क विल एक्चुअली हेल्प यू टू कीप योर लाइफ़स्टाइल स्पेंड्स इन चेक। हम्म। लाइक सी, मुंबई में आज आप महीने में 20 30 हज़ार खर्चा कर कर भी ठीक से रह सकते हो, 2 लाख महीने का खर्चा करके भी ठीक रह सकते हो। सो इट इज़ हम्म। अप टू यू कि आपका लाइफस्टाइल स्पेंड जो है, जो इनकम है, उससे ज़्यादा हम्म। ना बढ़े, एंड देन यू शुड बी फाइन। मेक सेंस। प्लस मेरे को ये भी लगता है कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग ना, जो भी आप अर्न नहीं कर रहे थे तभी की आपकी विशेस होती थी कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, उसमें आप बहुत ज्यादा भागते हो। यस, उस चक्कर में भी शायद सेविंग नहीं हो पाती। इवेंचुअली यू आर फुलफिल्ड कि हाँ हाँ जो जो लेना था सब ले लिया, देन या, मे बी इट कम्स टू अ बैलेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Makes sense. Coming to retirement concept of the new generation, I have also heard my friends saying कि 40 तक ही कमाना, उसके बाद तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। एंड आई फील कि फर्स्टली फ्रॉम अ वेरी वर्कaholic standpoint of view, I don't think कि people can sit idle. It is यस, very ट्रू। fancy to say कि हाँ हाँ 40 में retirement फिर chill. But I have seen my parents also कि नहीं, after a point I'll stop, but I see them working hard every day because it's also now to a point कि they don't know free बैठ के करे क्या। यस। From that perspective also it's there. But obviously from a very कि अब पैसे कमा लिए, अब तो 40 में बस हो गए, अब नहीं कमाना है। I am sure कि you also come across a lot of people like that. What is your advice to them? Like how do you tackle that? सी, वो थॉट आज जेंजी नहीं, सब में होता है। बिकॉज इनहेरेंटली हम हमेशा वही सोचते हैं कि हम अगर काम कर रहे हैं, विच समवेयर इट इज़ रॉन्ग, कि हमको एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ। सो आई विल अर्न टिल 40s एंड 40 45, और उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। बट प्रैक्टिकली, एज यू राइटली सेड, ये होता नहीं है। बिकॉज अगर आप 40 में रिटायर हो जाओगे, एंड द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज अराउंड 75 80s, अगले 40 साल आप क्या करोगे? यू कांट हाँ। सिट आइडल। बट रिटायरमेंट टुडे इज नॉट, इट डजंट मीन कि आप काम करना रुक जाए, आपने काम करना छोड़ दिया। इट मीन्स पैसे के लिए आपने काम करना छोड़ दिया है। फाइनेंशियल फ्रीडम, Yeah. राइट? सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने सोचा कि 40 तक मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, और उसके बाद पैसे के लिए काम नहीं करना है, बट खुद को खुद जो के लिए करना काम है करना, वो हाँ। मैं करना चाहूँगा। वेदर इट इज़ योर पैशन, वेदर इट इज़ योर फेवरेट पास टाइम, जिसको आप जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, वॉट एवर इट इज़। तो बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री एट 40s और 50s, अगर वो आपका गोल है, तो उसके लिए आपको तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए। और बहुत बार ऐसे होता है कि हमने एक सिर्फ कॉर्पस सोचा है कि मैं अगर, चलो, 1 2 करोड़ जमा लूँ, तो मैं 40 के बाद रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप 40 में पहुँचते हो, आपके जो एक्सपेंसेस है इतने बढ़ जाते हैं कि वो 1 या 2 करोड़ आपको 3 या 4 साल भी पूरा नहीं होगा, सस्टेन नहीं कर पाओगे, एंड देन द होल प्लान गोज़ फॉर अ टॉस। सो अगर आप 40 सीरियस हो कि फाइनेंशियली फ्री होना है, it needs lot of planning, discipline and smart investing. It is not something कि बैक ऑफ द एनवेलप आपने कैलकुलेट कर लिया और हो गया।
इंक्लूडिंग मी, आई हैव सीन मैनी पीपल जो बोलते हैं कि हाँ, मुंबई में जा रहे हैं, सो आई केम फ्रॉम पुणे टू हम्म मुंबई। जब मैं आया तो मैंने सोचा हाँ 10 साल काम कर लेंगे एंड आई विल गो बैक टू पुणे। हम्म 12 साल हो गए, आई एम स्टिल हियर एंड आई लव द सिटी। हम्म एंड सो वो प्लानिंग आपको बहुत पहले से करनी पड़ेगी और सीरियसली करनी पड़ेगी। हम्म सो इट इज़ नॉट अबाउट रिटायरिंग एंड स्टॉप वर्किंग, बट इट इज़ बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। और फिर उसके बाद जो काम करना है आपके इच्छा अनुसार जो आपको करना है वो करें। that is a good point. Like, I think yes, people are chasing more of financial freedom. And also one more thing that I've noticed people doing these days is having multiple source of income. यस, So पहले जो होता था कि एक जॉब कर लिया, अब वो जॉब से अगर स्विच कर रहे हैं तो यू स्विच, or else people have also stayed in the same job for like years together. यस, But nowadays, firstly you see people switching also quickly, secondly you see people having multiple source of income कि वो 9 to 5 कर रहे एक जॉब, बट उसके बाद कुछ और ढूंढ रहे, मे बी हैविंग सम शोज, गोइंग फॉर gigs, यस। volunteering there, or maybe also with content creators. It's a whole different journey together. How have you seen this journey evolving of people having like from going from one source of income to multiple, and do they actively, like, do you also have people coming to you who have like multiple source of income and then coming कि अब कैसे figure out करें? एब्सोल्युटली। और सी इंडिया में जब से पिछले 5-6 सालों में हमने डिजिटल इकोनॉमी हम्म का राइज देखा है, डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग मे बी फॉर एज अ पैशन या फिर बिकॉज दे आर गुड एट इट, वेदर इट इज पॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, हम्म जिससे उनको पैसिव इनकम आ रही है एंड इट इज़ वेरी गुड। बिकॉज आपको फिर एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम्म सी इनिशियली इन आवर डेज मे बी 10 years बैक पैसिव इनकम वाज लाइक आपने इन्वेस्ट किया, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ yeah अर्निंग yeah yeah पैसिव इनकम, राइट? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से भी आपको पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है, दैट वाज वन वे। और इन्वेस्टिंग इन सम बिजनेस, बट टुडे यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। That's the power of digital economy that we have. So many content creators, whether it is laughter shows, all this. So it is हम्म definitely very good. But in that, don't forget your main career also. हम्म If you're doing well, I've seen people switching from that to that. इस transition में again coming back to money, आपका पैसा या money management becomes very very important. हम्म If you're switching from working to following your passion, managing your finances, having that corpus is very very important. Coming to what you said right now, as a financial advisor, what would you say to people who, after having a decent career, earning really well, but now you see a lot of people randomly one day deciding कि नहीं ये नहीं करना है, passion follow करना है. हाँ, But obviously your passion will take time to give you money. yes. It might give you, it might not give you, that is a secondary thought. But obviously when you're starting out fresh, it is very difficult to make money. जब आप ऐसे सिचुएशंस देखते हो, व्हाट गोज बिहाइंड योर हेड, लाइक व्हाट आर द थॉट्स दैट यू हैव? So I mean, I've seen people like that, and some people have become fairly successful. हम्म Some people have come back and joined the workforce. But somewhere again, अगर financial safety है, अगर आपने वो corpus बनाया है, at least 3-4 साल का जो अगर आपके पास corpus है, then you can take that risk. हम्म And if you succeed, very good. If you don't succeed, and if you are good that you were doing earlier, you can come back. So I think so it's a good way. And as we are seeing this gig economy also growing, digital economy growing, startup culture growing, you will definitely see, or yahi se to you have seen companies like Zomato and all being हम्म built, where हम्म people started with one career, but then they had an idea, and they started something on their own, and they're successful. Also, if someone, watching this podcast is starting their own business, or maybe having an idea of startup, उस पॉइंट पे having an investment will become difficult, because if I am a businessman starting a business today, मेरा जो भी इनकम है वो जाएगा टू, ऑब्वियसली, जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको पे करने में. एंड स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली जो कैपिटल मनी है वो रहता है, बट इट गोज ऑल इन Hmm. investing for good gears, whatever, whichever Hmm. domain you're in, investing in that.
it becomes difficult to then think about investment and saving. So for young people or even any businessman of any age listening to this, what would be your advice ki how to go about it, and in that time also be sure to make कि नहीं इतना तो है मेरे पास साइड में, because I've seen a lot of people burning their money in Yes. businesses and then at times realizing very late also कि नहीं करना चाहिए था, ये टाइम पे स्टॉप करना चाहिए था, ये टाइम पे स्टॉप करना चाहिए था, but maybe now there would be someone listening to this in that situation only जहाँ they are starting to question it. Yeah. So as per you, is there any point where people should be like नहीं अब I need to back out, go back, start where I was? See, business and personal finance, the fundamental is money management has to be in a very disciplined way. बिजनेस में भी अगर आप कोई भी स्टार्टअप में अगर आप बर्न करोगे, देर इज अ लिमिट टू बर्न दैट Hmm. कैश. मे बी इफ यू डोंट सी रनवे अप टू मे बी अ ईयर, इट्स अ रेड फ्लैग. Hmm. अगर आपके पास अगले 9 महीने 12 महीने के सैलरी देने के भी पैसे नहीं है, इट्स अ रेड फ्लैग एंड यू शुड स्टार्ट री थिंकिंग अबाउट इट. सेम Hmm. गोज इन योर पर्सनल फाइनेंस. इफ समवन जिसने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है एंड if the startup is not working, of course his or her salary itself will become an issue. Yeah. और अगर आपके पास अगले 12 महीने एक्सपेंस के पैसे नहीं है, इट इज़ अ रेड फ्लैग. सो Hmm. दैट इज बेयर मिनिमम. नेक्स्ट Hmm. 12 मंथ्स का रनवे होना, whether it is running while running your business and managing your business expenses and salaries of your employees, या फिर पर्सनल मनी जहाँ पे आपके पर्सनल खर्चे. सो 12 मंथ्स के अगर पैसा नहीं है, इट्स अ रेड फ्लैग वेयर यू शुड स्टार्ट री थिंकिंग इन माई व्यू. Hmm. Understood. Okay. We'll have a fun rapid fire at the end, but uske pehle I want to talk about your book. How did you come up with that idea ki okay, now I need to be a co-author? And what was the idea of writing Mango Millionaire? So idea is, so Radhika has written a book called Limitless Yeah. 3 years back. So while writing that book, we used to talk a lot about. I was learning about how to write a book. I used to look at her chapters, and that time we spoke that we should also write something on money management, Hmm. finance, Hmm. because both of our careers or in last 15 years we have come across multiple people जो हमें basic questions पूछते हैं, right? आम आदमी, आम जनता, आम भाषा में आंसर Hmm. चाहती है, Hmm. and Hmm. we at times found it very difficult to explain them in very simple language Hmm. or in a structured manner. और क्या है ना, रैंडम एडवाइस अगर कोई आपको मिल जाता है, एक फोन कॉल करता है कोई रिलेटिव, 2 साल कभी कोई मिला नहीं और अचानक पूछता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, मार्केट क्या लगता है, इट इज़ वेरी Hmm. डिफिकल्ट टू Hmm. आंसर. बट वी रियलाइज दैट ऐसे बहुत सारे सवाल हैं एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी वेरी लो. Yeah. और आज ये सही टाइम है जहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम रियल एसेट, फिजिकल एसेट्स टू Hmm. फाइनेंशियल एसेट्स. इट इज़ राइट टाइम कि आम क्वेश्चन जो आम जनता के हैं, इनके आंसर्स भी आम भाषा में, आम तरीके से, Hmm. सिंप्लीफाई तरीके से उनको मिले. हमने सोचा ओके चलो लेट्स Hmm. राइट दिस बुक. वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम क्रिएटिंग द बेसिक इंडेक्स कि कौन से एसेट क्लास, क्या क्या इसमें कवर होने चाहिए, क्या क्वेश्चंस आते हैं. सो एंड देन दिस एक्चुअली बुक हैपेंड. Makes sense. I think this whole podcast also या was about that of having a basic question getting answered, because as you said, financial literacy बहुत कम है, and I'm sure people will go by this and have a bigger and a good perspective on very basic things about finance. Okay, so fun rapid fire. So firstly, I want to understand from your perspective, what are the three red flags that you see in investment when people are starting to invest? सो 3 रेड फ्लैग, अगर आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है, हर रोज सवेरे उठकर आप उसको देख रहे हो कि ऊपर है या नीचे है, इट्स अ रेड फ्लैग. सेकंड, आपको किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया या आपने पढ़ा, और जिसमें ओवर प्रॉमिस हो रहा है कि पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, इतने ज़्यादा, विच इज़ अनरियलिस्टिक, Hmm. दैट्स अ रेड फ्लैग. एंड थर्ड इज़ कोई भी अनरेगुलेटेड चीज़ है और जिसका काफ़ी फैड है, दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग. Okay. If people want to invest in three things when they are starting, what would be the three buckets that you would tell people to go and invest in? सो इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, बट आप कहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स लोगे या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लोगे. फर्स्ट इज ऑफ कोर्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस. सेकंड,
यू नो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी आप करें, वहाँ पे आप कर सकते हो। और थर्ड बेसिकली आपका इमरजेंसी कॉर्पस आपको बनाना है, वो भले आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखें या एफडी में रखें। ये 3 बेसिक फाइनेंशियल नीड्स और या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। Would you suggest people to go for EMIs, EMI options? सो डेट इज़ नॉट बैड, डेट Hmm. इज़ गुड अगर वो सही प्रोपोर्शन में हो। Hmm. सो डेट इज़ लाइक शुगर, राइट? इट स्वीटन्स अप योर taste buds. Yeah. So debt also can sweeten up your life. It can let you buy things which you can't afford it right now, but सही मात्रा में। So अगर सही मात्रा में आप डेट ले रहे हो, एंड if it is not incurring you lot of headaches, lot of heartburns, I think so it's okay. Okay. If someone is going for a credit card, is there a certain age that they should be like, ठीक है, अब I can go to get a credit card? Age, not age I would say, but understanding, Hmm. and understanding to use it responsible is the right age. So अगर Hmm. आपको वो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी 25 में आ जाए, दैट इज़ द एज। अगर वो 30 तक ना आए तो फिर 30 के बाद। सो इट इज़ Hmm. मोर अबाउट what are your habits, and how easily you are able to manage it well. If someone is getting a credit card like at a age of 18, what should be their percentage of spending on that credit card? आपकी अगर इनकम से या मंथली सैलरी से ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर रहे हो, इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। यू आर एबल टू स्पेंड वॉट एवर अमाउंट ऑन क्रेडिट कार्ड विच इज़ लोअर देन योर सैलरी, और नेक्स्ट मंथ आप उसको बिल पे कर पा रहे हो, इट इज़ ओके। बट Okay. जनरली जो आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट भी मिलती है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर सैलरी, और उस लिमिट का यूजुअली क्रेडिट कार्ड में टेक्निकली आप देखें, इफ़ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 30-40% तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है। सो दैट 30% रूल Hmm. एक्चुअली अप्लाइज देयर ऑल्सो। Hmm. Hmm. Okay, understood. If a person is looking out for a financial advisor, as in, अगर उसको mutual fund में invest करना and they're looking for someone who can help them out with, यस, what are the 3 things that they should be looking out for? या Because I'm sure कि वो different लोगों से बात करते होंगे and that is also confusing in a manner. So राइट। what are like the 3 qualities you would say कि if your investor is giving you this pointers, then maybe this is the investor for you. एडवाइजर यू आर सेइंग। Advisor, yeah. ओके, सो इट इज़ वेरी गुड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आपका करियर, एंड वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स पीपल डू इज ट्राइंग टू डीआईवाई, Hmm. और आप टाइम नहीं दे पाते हो। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और अ फाइनेंशियल एडवाइजर बाय योर साइड। Now, how to find it? Of course, you can come on our website. You can just Google कि आपके एरिया में कौन है म्यूचुअल फंड Hmm. डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड यू कैन फाइंड वन। रेफरेंस से आप देखिए, बिकॉज मे बी आपके पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव जो म्यूचुअल Hmm. फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर होगा। रेफरेंस से देखिए, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु गिव रेफरेंस ऑफ देयर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा Hmm. तभी दिया है। सो Hmm. इट्स अ वेरी पावरफुल वे टू गेट अ गुड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर बाय योर साइड थ्रू रेफरेंस। आस्क फॉर रेफरेंसेस। Hmm. उनमें हमको ये देखना चाहिए दैट हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू बिल्ड दैट ट्रस्ट आपको उनके साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंटली बात करना होगा कि आपके फाइनेंशियल कंडीशंस का। ओनली देन दे विल बी एबल टू हेल्प यू, Hmm. एंड डिज़ाइन अ पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर नीड। During our podcast, you mentioned that you have lived a major chunk of your life in Pune and then relocated to Mumbai. What were the lifestyle differences that you saw in both? Oh, well, both are same actually, you know. But of course, Mumbai has a very different vibe. Hmm. It is called the city of dreams for a reason, because यहाँ पे जो भी आता है, I mean, the city has enough to give them back. Hmm. And if you are really a hardworking person, you will never be disappointed by coming to Mumbai. So that is the difference, and it has a different vibe. Top 3 books that you would suggest for anyone getting into investments or even saving or money for that matter? सो अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, सो ऑफ कोर्स मैंगो मैंगो मिलीनियर वी हैव रिटन फॉर दैट पर्पस, दैट Hmm. इज अपार्ट फ्रॉम दैट, psychology of money Hmm. is very good Hmm. book Hmm. which you can refer. If you want to learn about stock investing, uh, not everyone needs to understand that, but Yeah. if you are interested, so intelligent investor is Okay. very good. uh,
to give you all the basics of Hmm. investing, teaching you various methods. It's a heavy book, Hmm. but at some point in time, अगर आपको interest है, आप पढ़ सकते हो. Hmm. I'm sure that you are busy with a lot of meetings throughout your day, but how do you make sure that you're also gaining knowledge about money making and investment on a day to day basis? Because with today's digital generation, it is changing every day. Yeah. So, how do you what do you do firstly, and how much time do you invest in learning those things? So reading is very, very important if you want to keep up with all the changes that is happening in the economy, in financial market. So I spend even today at least an hour reading some or the other thing. So one question that I usually ask my guests is business, money, investment, working takes up a lot of your time. So how do you make sure you're giving time to personal life as well? Because Mm. in today's day and age, we see a lot of debates on work-life balance and how people manage their work, their personal life. So what is your take on that, and how do you manage both the things? Because I'm sure you have been working in this industry for such a long time, you would have better advices to give to people. Oh well, so so you have to definitely balance it out. In my personal thing, I think so. Weekends are always for family. Hmm. Of course, for your own passion also, like reading, doing something else. But definitely, weekends are for family. Whenever you go home, of course, you'll have to spend time. But yeah, sometimes you are not able to justify Yeah. it. Uh, how much better you can try to manage, it is better. But uh, initially in your career, definitely you get less time with your family, that I've seen and realized. So don't be harsh, it's okay. Hmm. But whenever you get time, give full attention to your family and be with them. Okay. One last question that I have is, what advice would you give to a younger generation listening to this podcast Hmm. about money management, finance? It is very important to understand the role of money in life, right? Money is important, but everyone will say it's not everything, but it is a lot of thing. So use money to express yourself, not impress others. Hmm. And if you do that, I think so a lot of things will get in place. Okay. I think that is where we should end it because it's a very important nugget. Thank you so much for doing Thank this, you, sir. thanks for having Thank me. you. Thank you.